Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to bring to you Breaking Barriers, a series of webinars that strive to foster creativity and learning among our students. Today, Delhi Public School Varanasi, Nasik, and Lava Nagpur host the sixth edition of Breaking Barriers, up close with Kuldeep Yadav, the whirlwind wicket taker. India constitutes 90% of the 1 billion cricket fans, reveals an ICC research. In India, cricket is a religion and cricketers are as popular as movie stars. India plays more international cricket than any other country. And then the men in blue promptly participate in the unrelenting 2-month long grind of the IPL during the summer. The lockdown has brought all sporting activity to a grinding halt. The much awaited IPL has been postponed. It's workout from home for India's cricket stars, and we have a superstar with us today. Born on 14th December 1994 at Kanpur, this meritorious student played cricket for fun. His father, a brick kiln owner, wanted him to pursue cricket as a career and took him to coach Kapil Pandey. What followed thereafter is known to all. Years of hard work, grit, and determination have made Kuldeep Yadav the first Chinaman that India has produced at the international level in its long cricketing history of 82 years. Kuldeep's entry into the Indian squad was not without obstacles, heartache, disappointments, and setbacks. But he never lost hope and kept working on his game. He made his IPL debut with Kolkata Knight Riders in 2014. He waited 3 long years to make his Test debut in March 2017, ODI debut in June 2017, and in July, he played his first T20. Kuldeep became the new face of the Indian spin bowlers when his hat trick in the second ODI between India and Australia helped the men in blue beat the Aussies by a massive 50 runs. He was dubbed as the mystery man of the Indian side. Kuldeep Yadav is the first bowler for India to take 2 hat-tricks in ODIs. He is the second Indian other than Bhuvanesh Kumar to take 5 wicket hauls in all 3 formats. He is the first left-arm wrist spin bowler to represent India in Test cricket. His spell of 10 overs, 0 maidens, 25 runs, 6 wickets against England is the best figures by any left-arm spinner in ODIs. This whirlwind wicket taker also has a penchant for शायरी. फिर तुम मेरी होती is a collection of quotes written by Kuldeep Yadav. The quotes are reflective, introspective, and talk about the different shades and colors of life. We welcome Kuldeep Yadav. आज के इस वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ वाराणसी, नासिक और लावा नागपुर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और उनके परिवार के सदस्य जुड़े हैं. तो हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. मेरा सबसे पहला सवाल. First of all, thank you so much, ma'am, for this lovely introduction, I guess, and the beautiful few things I really felt that even I don't know, and that's a beautiful introduction. I would say. So thank you so much again, ma'am. All right. So हमारे आज का ये वेबिनार शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे पर कोच के कहने पर आपने स्पिन बॉलिंग को अपनाया. क्या आपको इस बदलाव को एक्सेप्ट करने में वक्त लगा? हमने आपका ना रणजी ट्रॉफी का 2016 के भी स्कोर्स देखे हैं. बड़ौदा के खिलाफ आपने सेंचुरी बनाई थी
आई थिंक 117 रन्स बनाए थे। तो क्या कभी लगा कि बैट्समैन बनना चाहिए था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो आई यूज्ड टू बॉल फास्ट, एंड उसके बाद जैसे ही कोच ने बोला कि नहीं अब तुम स्पिन बॉलिंग करोगे, तो आई वाज लाइक, मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे, तो मैंने गुस्से में ही स्पिन बॉलिंग डाली। तो मुझे लगा कि शायद सर को अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसे डालता हूँ। तो बट जो मेरी स्किल थी, जो मैंने जिस तरह से चाइनामैन बॉल उस टाइम डाली, वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये चाइनामैन है। और शायद से सर ने 3-4 बार मुझसे बॉलिंग कराई, उसके बाद शायद सर को लगा कि कोच को लगा कि शायद इसमें ये टैलेंट है, तो इस पे वर्क किया जा सकता है। तो उसके बाद से सर ने कहा कि आज से तुम स्पिन डालोगे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और 3-4 दिन मैं ग्राउंड भी नहीं गया, प्रैक्टिस पे नहीं गया। मुझे लगा कि मुझे नहीं खेलना है। फिर फिर पापा ने फिर अगले दिन से फिर 4-5 दिन बाद फिर ग्राउंड भेजा, तो उससे स्पिन स्टार्ट हुई। बैटिंग का मुझे बहुत शौक था बचपन से, क्योंकि एक्चुअली बॉलरों को होता है बैटिंग करने का चस्का, तो मुझे हिसाब से बैटिंग का बहुत शौक था। और प्रॉपर उसके बाद काफ़ी मेहनत की बचपन में बैटिंग में, और इसकी तरह से जब डोमेस्टिक में मैं खेल रहा तो एज़ ए ऑलराउंडर खेलता था और काफ़ी रन बनाया मैंने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी में। एक सीज़न तो मैं हाईएस्ट रन गेटर था टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में। तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे बैटिंग पे ही पूरा ध्यान देना चाहिए। मेरा हमेशा से एम था कि मैं बॉलिंग जितनी अच्छी करूँगा, उतना ही मेरा नाम शायद बढ़ेगा, ना कि मेरी बैटिंग में। अगर मैं बैटिंग में 1-2 मैच में रन बनाता हूँ तो ऑफ कोर्स रहेगा एज़ अ ऑलराउंडर, बट जो स्किल मेरे पास थी बॉलिंग में, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम ना एक आपका छोटा-सा वीडियो क्लिपिंग देखना चाहेंगे। आपके अंडर 19 जो मैच हुआ था जिसमें आपने वर्ल्ड कप मैच जिसमें आपने हैट्रिक ली थी, तो उसका एक छोटा-सा क्लिपिंग हम हमारे दर्शकों को भी आज दिखाना चाहेंगे। फिर मेरा उसके ऊपर एक सवाल है आपसे। बिल्कुल मैम। Kuldeep Yadav. Now that's up in the air, should be taken. Only goes as far as short mid. We looked to slog it over. Yeah, she didn't give himself much time, only a few balls. Went for the sweep shot. Straight up in the air, an easy catch. Now Scotland now 59 for 4. Oh, he didn't play a shot. Up goes the finger. Had to pitch in line, hit in line. The umpire thinks he did both. What is absolutely certain is that he didn't pick the googly. Went to leave it, he saw it bad pitch, and that's out. He just didn't pick it. A great piece of bowling. India all over top now with the spinners. तो इस मैच में आपने एक हैट्रिक ली थी, और तब कैसा महसूस हुआ था? दूसरा विकेट लेने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था कि तीसरा विकेट ले पाऊंगा या नहीं? ऐसे कुछ सवाल थे, कुछ ऐसे ख्याल थे आपके? अ, जब मैं अंडर 19 खेल रहा था तो उससे जिस मैच में मैंने हैट्रिक ली उससे पहले अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब मुझे विकेट नहीं मिला था, बॉलिंग अच्छी हुई थी तो विकेट नहीं मिला था। तो मैं बहुत प्रेशर में था कि यार अगला मैच होगा तो मुझे विकेट निकालने हैं। ऑफ कोर्स सभी में, क्योंकि पहली बार टीवी पे कोई मैच आ रहा है और सब लोग देख रहे हैं, तो अब हमेशा चाहते हैं कि परफॉर्म करें। तो उस जब स्कॉटलैंड से मैच था तो 3-4 ओवर ऐसे ही निकल गए और मुझे लगा विकेट नहीं आ रहे हैं। तो जब ये पल आया बॉलिंग के लिए, 2 विकेट मैंने निकाले। तो तीसरा विकेट बस खाली मैंने विजुअलाइज़ किया था कि मैं राउंड द विकेट डालूँगा बॉल और थोड़ा दूर रखूँगा बॉल, विकेट पे शायद बोल्ड हो जाएगा। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। पर हैट्रिक के लिए कोई सोचता नहीं है, कोई प्लान नहीं करता है। बट लास्ट बॉल के लिए हमेशा सोचते हैं कि ये दिमाग में नहीं था कि मेरी हैट्रिक हो जाएगी क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैट्रिक लेना। बस मेरे दिमाग में था कि शायद मैं थोड़ा बॉल दूर रखूँगा, स्पिन कराऊँगा तो शायद बोल्ड हो जाए। तो बहुत अच्छा टाइम रहा अंडर 19 में और पहली हैट्रिक थी मेरी। ऑफ कोर्स उससे पहले कभी हैट्रिक ली नहीं थी तो बहुत खुशी हुई। एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस रही।
तो ज़्यादा खुशी थी उस चीज़ की। जी बिल्कुल। एंड आई एम श्योर जो पहला एक जैसे हैट्रिक है ये आपके सब दिल के सबसे करीब होगी। तो अभी एक और छोटा सा वीडियो है जिसमें आपने 5 विकेट होल लिया था उस मैच में। तो हम वो भी एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और फिर मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगी। बिल्कुल मैम। Khawaja advances and holds out. Pujara takes the catch and Kuldeep gets his first wicket. It advances and Kuldeep takes the catch. Oh, I'd be very, very disappointed, Travis said. I think that was a full toss. Out the back of the hand. Bowled in, beautiful bowling. Kuldeep Yadav set Payne up beautifully, bowled the top spin of the previous ball and then came back through the gate. Right on the toe in front and given. Ian Gould, yeah, just had a little think about it. Kuldeep, too good. It was 2 wrong ones in a row and then he went full and straight, got rewarded. Let me come back, but oh, what bowled. He's given it. So, it's like taking you down the memory lane again. So, आप Yes, yes, ma'am. भारत के पहले बॉलर हैं जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में 5 विकेट एक इनिंग्स में लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं आप इन तीनों अलग-अलग फॉर्मेट्स में जब बॉलिंग करते हैं? मैम it's very different from the white ball. If you play test cricket, it's totally different. It will take another like 15-20 days to back in that schedule, I guess. And वनडे जब भी खेलते हैं उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, पर ऑल इन ऑल सब में बहुत एफर्ट लगता है, हार्ड वर्क बहुत चाहिए, बिलीव चाहिए अपने अपने खुद में बहुत बिलीव चाहिए। Sometime it feels like people are not giving you credit proper enough, you know. तो आपको उनको ज़्यादा सुनना नहीं है। बहुत लोग आपकी बहुत बुराई करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको हमेशा अपने में बहुत फोकस रखना है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में और अपनी स्किल, जो आपकी स्किल है, एंड आई मीन जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, उसको आप दूसरों से सुन के आप कभी कंपेयर मत करिए, क्योंकि जो आपको पता है, जो आपकी स्किल है, जिस पे आप मास्टर हो, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए और उसके साथ-साथ सेल्फ बिलीव बहुत चाहिए आपको। और एक थर्ड जो आपको है, आपको गिव अप नहीं करना है कहीं भी, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बहुत सा टाइम आता है कि आप बहुत ट्राई करते हो, बहुत एफर्ट करते हो, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि यार शायद मेरे नसीब में नहीं है, या फिर मैं जाने देते हो, तो उस टाइम पे आपको पकड़ के रखना है वो चीज़, आपको छोड़नी नहीं, जाने नहीं देनी। कोई चीज़ आप पकड़ते हो तो उसको जाने नहीं देना है। तो ये मैंने अपने करियर में बहुत सीखा है और शायद इसका नतीजा है कि जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे खेलने का मौका मिलता है, मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ। और सारे फॉर्मेट में जगह बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए और बिलीव आपको बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत से टाइम होता है कि आप एक मैच में खराब परफॉर्मेंस करते हो तो 50,000 लोग बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो आपको वो सब नेग्लेक्ट करके आगे आगे अपने अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी स्किल पे फोकस करना है। Wonderful. So perseverance is something that you are, telling our students. Yes, definitely, ma'am. 2017 साल आपके लिए बहुत लकी रहा। 5 महीने के अंतराल में आपने भारत के लिए टेस्ट मैच, वनडे और T20 सब खेल लिया। तो कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था कि नाउ आई हैव अराइव्ड? कैसी फीलिंग्स थी? When I made my test debut, ma'am, I was very nervous when I entered the ground for the first time. उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि शायद I was totally blank, ma'am. What other people were saying at that time was, I don't know what they are saying, what they are talking about.
सीरियसली मुझे कुछ पता भी नहीं था क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद जब मुझे टेस्ट कैप मिली तो आई वाज इन डिफरेंट जोन, यू नो। हम्म, उन्होंने क्या बोला मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि आप इंडिया के लिए आप जब खेलते हो वो तो आप अपने में ज़्यादा फिर समझ में नहीं आता कि एक बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि जब आप जो भी आप सपना देखते हो कभी-कभी जब भी वो पूरा होता है तो आपको समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करें। तो मेरे लिए बहुत प्रेशर सिचुएशन थी मेरी जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया। एट द सेम टाइम नर्वस भी था। और एक्चुअली जब आप हमेशा थोड़ा-सा प्रेशर में रहते हैं या फिर आप थोड़ा-सा नर्वस रहते हैं, तो आप बेटर परफ़ॉर्म करते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ़ में सीखा है कि जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा नर्वस हो, तो आप हमेशा रेडी रहते हैं हर चीज़ के लिए। आप हमेशा सतर्क रहते हैं। बोलते हैं ना कि हाँ, आप ऑन टोज़ रहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आपको रखनी है। आपको हर चीज़ का डर होना ज़रूरी है लाइफ़ में, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ का डर नहीं है, तो आप उसको कैसे कॉन्कर करेंगे आपको पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक यंगस्टर के लिए बहुत, जितने भी यंगस्टर जो भी पढ़ाई हो या फिर किसी भी चीज़ में आप कोई भी आपका प्रोफ़ेशन है उसमें आपको डर होना ज़रूरी है। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा-सा भी डर होगा किसी चीज़ का कि नहीं यार मुझे और, तो आप थोड़ा और एफ़र्ट मारेंगे और थोड़ा और फ़ोकस बनाएँगे। तो ये चीज़ यंगस्टर के लिए है। और जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा कौन से फॉर्मेट में खेलना आपको अच्छा लगता है? मैम इंडिया के लिए कोई भी फॉर्मेट हो, ऑफ कोर्स तीनों फॉर्मेट में खेलना बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट बॉल, रेड बॉल, बट रेड बॉल से क्रिकेट अलग होती है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट बॉल। तो जी, मुझे रेड टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है खेलना। अगर जितना ही मौका मिलता रहेगा, तो टेस्ट क्रिकेट मैं खेलता रहूँगा। बिल्कुल। हमारे स्कूल के भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और उनकी बाकायदा कोचिंग भी होती है। पर ज़्यादातर बच्चे सिर्फ बैटिंग करना चाहते हैं। जिस दिन कोच ने फील्डिंग प्रैक्टिस कराई, कैचिंग प्रैक्टिस कराई, उस दिन शिकायत होती है कि सर खिलाते नहीं हैं। तो इन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जो बनारस में डीपीएस है, वहाँ पे जो एकेडमी है, वो मृत्युंजय सर हमारे कोच रहे हैं। उनके जो स्टूडेंट वगैरह जो कोचिंग दे रहे हैं, अभिषेक पाल, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है और उनको एक्चुअली में पता है। और मृत्युंजय सर हमारे साथ अंडर 19 से रहे हैं हम्म, और बेस्ट कोच है। मेरे हिसाब से अंडर 19 इंडिया के लिए वो खेले हैं। वो बड़े-बड़े क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान जैसे प्लेयरों के साथ खेले हैं, युवराज सिंह। तो आई मीन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ पे। और आजकल के प्लेयरों को ज़्यादा बैटिंग पसंद आती है। आजकल जितने भी क्रिकेटर हैं उनको बैटिंग बहुत पसंद लगती है। तो क्रिकेट बहुत बैटिंग के हिसाब से क्रिकेट थोड़ा बहुत आसान हो गई है बैटिंग करना। विकेट अच्छे मिलने लगे हैं। बॉलिंग कोई करता नहीं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ़ बैट्समैनों का गेम है। अगर आप सही से देखेंगे तो जो बैटिंग में रन बनाएगा उसकी ज़्यादा तारीफ़ होती है, या फिर और बॉलर्स को इतना क्रेडिट कभी नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी क्रिकेटर प्रैक्टिस कर रहा है तो बॉलिंग की भी प्रैक्टिस करे, क्योंकि अगर बॉलर कम हो जाएँगे तो फिर बैटिंग कैसे करोगे? बॉलर ही नहीं बॉलिंग डालेंगे तो फिर अकेले बैट्समैन ही बैटिंग बॉलिंग करते रहेंगे। तो बॉलिंग करिए, बॉलिंग पे भी ध्यान दीजिए। और अब बहुत सारे ऑप्शन है, आप बैटिंग प्लस बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। तो आप बैटिंग प्लस बॉलिंग भी कर सकते हैं। हाँ जी। एंड जो क्रिकेट के न्यूएंसेस हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, आई थिंक वो भी सीखना बहुत जरूरी है। क्रिकेट सिर्फ बल्ला घुमाने का गेम मुझे नहीं लगता है। अम, बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली मैम, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला है मैम। अगर क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना है, तो उसको अपने कोच को चूज़ करना पड़ेगा कि कौन-सा कोच उसे अच्छी गाइड दे रहा है, या फिर और जब भी आप क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको एक ही कोच होना चाहिए या एक ही बंदा होना चाहिए जो आपको गाइड करे। तो आपका फ़ोकस सिर्फ़ उन्हीं पे रहेगा, क्योंकि अगर या तो आपके डैड हो सकते हैं, या तो आपके कोच हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, जो हाँ जी, आपको मोटिवेट करे और अच्छी डायरेक्शन में आपको ले जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या होता है कि आप 10 जगह कहीं और प्रैक्टिस की, उसके बाद कहीं और प्रैक्टिस करने चले गए, तो जो आपका जो स्किल लेवल है वो इम्प्रूव होगा, पर जो देखने वाला होगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप एक जगह रहोगे तो आपको एक एक जो कोच है आपको गाइड करता रहेगा, आपको बोलता रहेगा, वो बचपन से आपको ग्रो करेगा,
तो जब आप थोड़ा बड़े हो गए तो उसको पता रहेगा कैसे मैंने कितना एफर्ट किया है या फिर कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपको गाइड करना बहुत ईज़ी रहेगा उसके लिए। तो आप एक कोच चुनें और उस पे ही टाइम बिताएँ, क्योंकि अगर आप बार-बार कोच चेंज करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है क्रिकेट खेलना। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सलाह दी है आपने हमारे बच्चों के लिए भी। अम, हमने सुना है कि क्रिकेटर्स के लकी चार्म होते हैं, थोड़े से सुपरस्टिशियस होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के एक लकी सॉक्स के बारे में सुना है जो वो हर मैच में पहनते थे, या किसी के पैड्स के बारे में सुना है कि नए पैड्स के ऊपर पुराने पैड्स पहनते हैं क्रिकेट खेलते वक्त। या इंडिया जैसे कोई मैच जीत रही होती है तो जो प्लेयर जहां जिस पोजीशन में बैठा है उसको वैसे ही बैठे रहना, हिलना नहीं है। इनफैक्ट सौरव गांगुली का जो लॉर्ड्स के बालकनी का जो एक किस्सा है नेट वेस्ट सीरीज 2002 का, वो तो बहुत फेमस है और सबको पता है। तो मुझे आपसे पूछना है, आपका कोई ऐसा लकी चार्म है? डेफ़िनेटली येस मैम, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो कि यार मैं वही चीज़ में, चाहे वो आपकी मैच मैच जर्सी क्यों ना हो। और सॉक्स हाँ जी। सॉक्स की बात आपने की तो मैं भी वही करता हूँ। जो सॉक्स मैं मैच में पहनता हूँ, वो मैच टू मैच ही पहनता हूँ, और टी-शर्ट जो मैं मैच में पहनता हूँ, तो जिससे मेरी परफ़ॉर्मेंस होती है तो मैं वही चीज़ पहनता हूँ, रिपीट करता हूँ। यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बैठने से लेके हर चीज़, जहाँ पे आपको लगता है, कभी-कभी होता है आपको कम्फ़र्ट करने के लिए आप चीज़ें करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा जी। लगता है आपके बैक ऑफ माइंड हमेशा वो चीज़ें रहती हैं। क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, आपको लगता है कि मुझे वहाँ बैठना चाहिए, तो अगर आप वहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में रहेगा, यार मैं वहाँ बैठा नहीं। तो आपको खुश करने के लिए, आपके माइंड को बिल्कुल कम्फ़र्ट करने के लिए आप चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अंधविश्वास है, बट एट द सेम टाइम ये आप अपने माइंड को कंफर्ट करने के लिए आप चीज़ें करते हैं। या फिर आपको कभी आपको सॉक्स पहनने हैं, तो आप सॉक्स वही पहनेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं मुझे पहनना चाहिए। या फिर ओके। तो लोग ऐसे करते हैं अपने माइंड को कंफर्ट करने, क्योंकि आप जब गेम खेलते हैं तो आप जितना आपका माइंड कंफर्ट रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई हल्का सा भी रहेगा कि यार ये कर लेता, वो कर लेता, डाउट्स जहाँ आपके दिमाग में आएँगे तो आप शायद स्ट्रगल करेंगे। तो ये जो जितनी चीज़ें होती हैं, यहाँ बैठना, वहाँ बैठना, अगर आप घर पे मैच देख रहे हैं, इंडिया अगर खेल रही है तो आप, अगर इंडिया क्लोज़ गेम है तो आप बोलते हो कि जो यहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, अच्छा परफ़ॉर्म हो रहा है। तो आप अपने माइंड को कम्फ़र्ट करें कि नहीं यार वो भी सही बैठा है, वो भी बैठा है, तो आप फ़ोकस करते हो। तो ये चीज़ें हैं, बस लोगों को लगता है कि शायद ये अंधविश्वासी है, ऐसा-वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि बॉलर्स जो हैं बॉल को चमकाने के लिए अपनी सलाइवा थूक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस पैंडेमिक के चलते आपको क्या लगता है, आईसीसी इस पर बैन लगा सकती है? लुक मैम, आई रियली डोंट नो क्या डिसीज़न लेंगे वो, बट अगर सलाइवा अगर नहीं यूज़ हुआ तो फिर बॉलरों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आई गेस। अगर तो फिर उनको अल्टरनेटिव कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा आईसीसी को। अगर उन्होंने और कुछ अप्लाई करने के लिए बोला तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बैट्समैन को। अगर अगर वो वैक्स हो गया, फिर कुछ भी हो गया तो बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सलाइवा नहीं यूज़ किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे चेंज ना करें, पर इनिशियली जब से जैसे ही पैंडेमिक ओवर होगी उसके बाद कुछ न कुछ टाइम के लिए शायद वो कंट्रोल में रखे। अदरवाइज़ अगर सलाइवा बंद करते हैं तो मुझे लगता है कि बॉलरों को मार देगा अगर ये चीज़ हुई अगर। ओके, ओके। सिंस अभी हम पैंडेमिक की ही बात कर रहे हैं तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से स्टेडियम में दर्शक नहीं आ पाएंगे, और जैसे फुटबॉल शुरू हो गया है, शायद क्रिकेट भी शुरू हो जाए जिसे दर्शक सिर्फ टीवी पर देखें। तो कैसा अ, लगेगा खाली स्टेडियम में मैच खेलना? मैम, थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि आपकी आदत छूट गई है। क्योंकि जब बचपन में खेलते हो तो आपको क्राउड मिलता नहीं है उतना। तो वैसे सेम फीलिंग होगी जैसे कि आप बचपन में खेल रहे, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट अगर विदाउट विदाउट आई मीन क्राउड के होगा तो बहुत मुश्किल। मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होगी। एज़ ए बॉलर आई फ़ील कि थोड़ा एडवांटेज रहेगा आप पे, क्योंकि अगर क्राउड रहता है तो वो बहुत शोर करता है, जिसकी वज़ह से बैट्समैन हमेशा एग्रेसिव रहता है।
तो हमेशा वो चिल्लाते रहते हैं, तो बैट्समैन हमेशा एग्रेसिव रहता है, बड़े लंबे-लंबे शॉट खेलने की कोशिश करता है। जब जी, क्राउड नहीं रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा एडवांटेज बॉलर के फेवर में जाएगा, क्योंकि बैट्समैन को भी वो फ़ील चाहिए, क्योंकि अगर बैटिंग कर रहा है, अगर टी20 फॉर्मेट में अगर बैट्समैन को फ़ील चाहिए, अगर क्राउड चिल्लाता है तो वो भी दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ, बड़े-बड़े शॉट मारना, फिर एग्रेसिव मोड में रहता है। अगर क्राउड खाली रहेगा, ग्राउंड खाली रहेगा, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है। शायद ये चीज़ मेरे हिसाब से बॉलरों के फ़ेवर में होगी, अगर ऐसा हुआ। ओके। आपको लगता है ये बॉलर्स के फेवर में है। चलिए एक 100% मैम। सवाल, यू नो, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारे यहाँ तो कर्फ्यू लग जाता है, सारे लोग टीवी के आगे उस समय बैठे होते हैं। तो जब आप इंडियन टीम में मैच खेल रहे होते हैं तो आपका क्या मेंटल प्रिपरेशन होता है, या पूरे टीम का क्या प्रिपरेशन होता है? क्या थोड़ा प्रेशर होता है परफॉर्म करना है इस मैच में? मैम इंडिया पाकिस्तान हमेशा बड़े मैचेस होते हैं, और हम लोग से ज़्यादा से इंडिया में जो क्रिकेट फैन है, क्रिकेट लवर जो नहीं भी देखते हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान ना हारे। जी, तो ये हमेशा रहता है, और प्रेशर तो नो डाउट प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान से मैच हार जाए, किसी से हार हार जाए चलेगा, पर पाकिस्तान से जीतना है। तो प्रेशर रहता है, और मेंटली ज़्यादा सोचते नहीं है उस चीज़ को, बस एक नॉर्मल सोचते हैं कि जब जितना होता है उतना रिलैक्स अपने आप को करते हैं। और जब ग्राउंड पे पहुँचते हैं, तो फिर जब अपना क्राउड देखते हैं, इंडियन फ्लैग देखते हैं या फिर फैन्स देखते हैं, चीयर करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और हमेशा रहता है कि यार अभी अभी इनको हराते हैं। तो फिर हमेशा ऐसे फ़ील होती है कि नहीं यार, अभी हराना है इनको। तो डेफ़िनेटली एक इंडिया पाकिस्तान बड़ा मैचेज़ में से एक है, और प्रेशर भी बहुत रहता है। wonderful. We also have three budding cricketers with us today. और उनके पास भी आपके लिए कुछ सवाल हैं। सो मैं ओके। उनको अभी इंट्रोड्यूस करती हूँ। आरुष दास बंसीवाल of grade 9 is the captain of DPS Lava Nagpur's cricket team. He is playing cricket since a very young age, and his idol is MS Dhoni. He is an वाह! all-rounder. He also plays football. He has ओह वाह! represented the school in district level tournaments. Next, ओके, we गुड। have Lakshya Ravtani of grade 10. He is the captain of the cricket team of DPS Varanasi. He is a leg ओके। break bowler. Shane Warne is his idol, and he likes to bat in the middle order. So over to you, Arush. You can start asking your questions. तब माय क्वेश्चन इज 5 विकेट हॉल लेने के बाद आपको कैसा लगता है, और चेंजिंग रूम में जाने के बाद आपके टीममेट उस 5 विकेट हॉल के बारे में आपको क्या बोलते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम भी क्रिकेट खेलते हो, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आप 100 रन बनाते हो, 5 विकेट लेते हो, या फिर आप बैट्समैन हो, तो 100 रन बनाने के बाद आपकी ऐसी फीलिंग आती है कि आपके आस-पास कोई है ही नहीं। फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ही सबसे बड़े प्लेयर हो, और जब आप क्राउड में जैसे ही आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो, तो आपकी पीठ थपथपाते हैं लोग, शाबाशी देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है मैंने टीम के लिए कुछ किया। तो सेम गोज़ टू ऐसा ही बॉलिंग के साथ भी होता है। अगर आप 5 विकेट लेते हो, तो आपको ग्राउंड में अलग ही लगता है। फिर आप बॉल दिखाते हो 5 विकेट लेते हुए, तो आप क्राउड से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी तारीफ़ करे, तो आप वैसा ही फ़ील करते हो जैसा होता है। और जैसे ही आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो, तो सब आपकी पीठ थपथपाते हैं। फिर आप हमेशा ये सोचते हो कि आपने टीम के लिए कुछ किया। तो कैप्टन से बात होती है, फिर आप अच्छे से बैठ के रिलैक्स करते हो, मैच देखते हो जब आपकी अगर बैटिंग चल रही है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, और ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है आपने टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको वो चीज़ें समझनी है कि आपको क्रेडिट देना है, पर एट द सेम टाइम क्रेडिट अपने टीम को भी देना है कि उनकी वजह से आपने विकेट लिए, या फिर आपने 100 रन बनाए, या फिर एफर्ट इतना किया। चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे विकेट कीपिंग में क्यों ना हो। तो आप हमेशा अपनी टीम को ही ऊपर रखते हैं, और उस पल को, उस मोमेंट को एन्जॉय करते हैं एक टीम की तरह। और हमेशा आप सोचते हैं कि ये पल शायद इनके साथ आज मैं खेल रहा हूँ, आएँगे दोबारा,
पर इस ग्राउंड पे या फिर ये अपोनेंट है, वो दोबारा नहीं आ सकते, वो पल दोबारा नहीं आ सकते। तो उसको हमेशा अच्छे से मैं हमेशा फ़ील करता हूँ, हमेशा अच्छा करता हूँ, हमेशा मैं नोट डाउन करता हूँ जहाँ-जहाँ मैं विकेट लेता हूँ, परफ़ॉर्म करता हूँ। क्योंकि जब आप आगे निकलते 1-2 साल बाद आप रियलाइज़ करते तो आप हमेशा देखते तो उस मोमेंट को याद करते हैं और वो बहुत शानदार पल होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू आरुष। Lakshya, your question, please. I think we have lost Lakshya. So I will take a question from the audience. I'll take a question from the audience. I think we've lost Lakshya in between. So Arun Sorry, Bose, ma'am. Lakshya, nice hairstyle, bro. Thank you. Lakshya, you can Sir. go ahead, ask your question. So we've Yes, lost sir. him, I think. Yes, Lakshya. How are you? Yes, sir. I was saying कि it's always a great feeling when your idol becomes your rival. And जब आप शेन वॉन से मिले थे तो उन्होंने आपको क्या टिप्स दी थी? इतनी कोई टिप्स नहीं दी उन्होंने। जैसे आप मिलते हो तो आप कोई भी आइडल आपका जो भी जिसने आपको इंस्पायर्ड किया आप क्रिकेट में, तो आप उनसे जब मिलते हो तो आपके पास वर्ड्स नहीं होते। पहले 10-15 मिनट आप सोचते हो क्या बात करें, पर जब धीरे धीरे बात आप स्टार्ट करते हैं तो आप पूछते हैं अपनी बॉलिंग के बारे में कि कैसा मेरा रिदम कैसा है, मेरा हाथ कैसा आ रहा है, या मेरा मेरा बॉडी सिंक्रोनाइज हो रहा है, अलाइनमेंट कैसा है। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने अपनी बातें बताई, मैंने अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि मेरा हाथ ऐसे खुलता है। तो उन्होंने बहुत नॉर्मली बोला कि अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपकी नेचुरली है, जो आपके बेसिक्स है वो परफेक्ट है, तो उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेंटली मेंटली आपको उन्होंने काफ़ी बातें की कि आपको कैसे कैसे बैट्समैन को रीड करना है, कैसे आई मीन कैसे उसको फँसाना है, और किस तरह से आपको स्माइल करते रहना है हमेशा। क्योंकि बॉलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्माइल करना, क्योंकि अगर आप एन्जॉय नहीं करेंगे उस कॉन्टेस्ट को, तो आप हमेशा प्रेशर पे रहेंगे। तो वो इसीलिए शेन वॉर्न हमेशा बैट्समैनों पे चढ़ के रहे हैं, क्योंकि वो एन्जॉय करते थे बॉलिंग करना। और बहुत सारी चीज़ें शेयर की उन्होंने बॉलिंग को लेके। अब तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, तो जब भी मुझे कुछ लगता है बात करनी तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो भी अपनी तरफ से बात करते हैं उनको जब भी फ़ील होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। और जब आपको लगता है कि आप आपका जो आपकी स्किल है वो सेम है, तो कम्युनिकेट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, और वो समझते भी उतनी आसानी से हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे होगा। तो बहुत सी चीज़ें बातें की हैं मैंने, बॉलिंग राउंड द विकेट, बॉलिंग ओवर द विकेट, बॉलिंग राउंड द विकेट, स्ट्रेट एंगल, डायगोनल एंगल। तो ये सब क्रिकेट की बातें हैं, और जिस पे वो हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे और मैं हमेशा अपना रखता था। तो डिस्कशन हमेशा चलता रहता था, खत्म होता नहीं है। तो बस जो नॉर्मल चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने बस हमेशा ये बोला है, स्पिन स्पिन बॉलर को स्पिन आना चाहिए, बॉल को स्पिन कराना आना चाहिए। अगर आपकी स्पिन नहीं हो रही बॉल, तो फिर आप स्पिन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर जब आपको अच्छे विकेट मिलेंगे जहाँ पे बैटिंग करना ईज़ी होगा, वहाँ पे आपको स्पिन कराना अगर नहीं आता होगा तो आप स्ट्रगल करेंगे। तो उनके लिए वो बेसिक्स जो होते हैं, नॉर्मल बेसिक्स लेग स्पिनर के होते हैं, बॉल कहाँ से छूटना चाहिए, जो रिलीज़ पॉइंट है। आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो सीख रहे हैं, वो गूगल से भी सीख सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, कैसे बॉल रिलीज़ करते हैं। तो आई एम श्योर कि मेरे हिसाब से लेग स्पिनर हमेशा उनको देख के सीखें, तो हमेशा वो इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच में प्लेयर्स के माइंडसेट में कुछ डिफरेंस होता है? अगर हाँ तो क्या डिफरेंस होता है, और नहीं तो डिफरेंस क्यों नहीं होता? डेफ़िनेटली बहुत डिफरेंस रहता है, क्योंकि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, तो आपको हार्डली उतना एक्सपोज़र मिलता है, और प्लेयर का बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत
आपको अगर बैटिंग करें तो आपको 1 ही 2 बैट्समैन अच्छे मिलते हैं। अगर आपकी बॉलिंग देखा जाए तो 2 बॉलर अच्छे होते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको बैटिंग 6 नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन मिलेंगे। उसके बाद जब आपकी बैटिंग आएगी तो 4 प्रॉपर बॉलर मिलते हैं। और इंटरनेशनल में विकेट का फ़र्क हो जाता है, बॉल का फ़र्क हो जाता है, प्रेशर, क्राउड, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सब बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। तो डोमेस्टिक में उतना बहुत ईज़ी है खेलना, डोमेस्टिक में उतना टफ नहीं है। बस मेंटली आपको कैसे ढालना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक आप खेलने जाएँगे तो इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहेंगे। और जब व्हेयरएज़ आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, कंडीशंस बहुत अलग रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थैंक यू सर। थैंक्स आरुष। Yes, sir. My next question is, जब आपको कोई बैट्समैन डोमिनेट कर रहा होता है तो आपकी कमबैक स्ट्रेटजी क्या होती है? क्योंकि यूजुअली बहुत कम टाइम होता है वहां से रिकवर करने का। बिल्कुल, जब आप पे कोई बैट्समैन डोमिनेट करता है, तो या तो आप उसको सिंगल दे दो। जब आपको लग रहा है कि आपको वो अटैक कर रहा है, तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप उसको सिंगल देके नॉन स्ट्राइकर को खिलाएँ। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन-सा बैट्समैन हल्का है, जिस पे आप हावी हो सकते हैं। 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अगर, तो उनको आपको लगता है कि एक अच्छा बैट्समैन है, तो आप उसको सिंगल देके दूसरे बैट्समैन को खिलाइए और उस पे थोड़ा प्रेशर बनाइए, उसको आउट करने की कोशिश करिए। और कभी-कभी आपके दिन अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा टाइम लेना है। कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत सोचना है, क्योंकि आप कभी-कभी आपको लगेगा कि मार पड़ रही है, विकेट नहीं आ रहे, तो आपको टाइम देना है और नेक्स्ट बॉल के बारे में बहुत सोचना है कि आपको नेक्स्ट बॉल कैसे फेंकनी है। और प्लान बहुत सारे लोग बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बट आई डोंट बिलीव इन एनी अदर प्लान, आई बिलीव इन ओनली वन प्लान। प्लान ए अगर आपका है, अगर वो फेल हो गया, तो आपको टाइम लेना है। प्लान बहुत से लोगों की थिंकिंग है, प्लान ए, प्लान बी भी बनाते हैं, आपको उधर से जाना है। आप छोटे-छोटे एंगल यूज़ कर सकते हैं, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, थोड़ा पीछे से, थोड़ा आगे से क्रीज यूज़ करना। ये सब प्लान में नहीं आते हैं, पर ये आपके मूवमेंट है, आप चेंज कर सकते हैं। और हमेशा अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, तो आप बहुत रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि आप जब आपके साथ एक्सपीरियंस करते हो कोई चीज़, तो आपको रियलाइज़ होता है कि शायद आपने ये मिस्टेक की। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। जब आप पे रन पड़ते हैं, तो आप थोड़ा-सा नर्वस होते हो, थोड़ा प्रेशर आता है आप पे। तो उस टाइम पे हमेशा आपको ऐसी बॉल डालनी है जिस पे 1 रन बैट्समैन ले, या फिर फुलर ट्राई कर सकते हैं, उसको 1 रन दिला के दूसरे को खिला सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको सोचना ज़्यादा है, ना कि एक्ट ज़्यादा करना है, सोचना ज़्यादा है उस टाइम पे। Okay, sir. Thank you. Cool. Thank you so much. Now we have another budding cricketer, Aditi Rane of grade 12 from DPS Nasik. She is a national level cricket player from Maharashtra. She wants to take up Okay. cricket very seriously and she wants to make it her career. She is an all-rounder. However, fielding fascinates her. And Okay. she also enjoys trekking and camping. She has a rapid fire round for you today. Okay. Cool. हेलो सर। तो Hi. मैंने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रखे हैं एंड आई एम श्योर कि आपको वो थोड़े इंटरेस्टिंग लगे। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर विद इन 10 सेकंड्स देना होगा, वन वर्ड में। तो 10 seconds. Okay. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके ऊपर एक बायोग्राफिकल फिल्म बनाई जाए तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले करे? Of course, me. No one else. अरे हमको एक्चुअली पता था कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस है, इसलिए हमने जानबूझ के एक्टर का नाम दिया इसलिए। तो Actor अमिताभ बच्चन. हाँ, गुड गुड। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि 5 विकेट्स हॉल या सेंचुरी, आप क्या प्रेफर करोगे? 5 wicket haul any day. ऑब्वियसली आप एक बॉलर हो तो या Easy one. You asking easy one. तो ठीक है, थोड़े हार्ड पे चलते हैं। सो लाइक ड्रेसिंग रूम में आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी होगी? विद इन 10 सेकंड्स सर। Yes.
when I got 5 wickets in Sydney Test, I wrote there where I was sitting. I wrote there 5 for 99. So that was the best memory, I guess. ओके सो इसमें सबसे जिद्दी इंडियन टीम में सबसे जिद्दी प्लेयर कौन है? जिद्दी हम्म जसप्रीत बुमराह. ऐसा क्यों? उसको थोड़ा गुस्सा उस्सा आता है, वो जिद्दी है. उसको अगर कुछ कोई चीज नहीं उससे नहीं होती तो उसको बहुत गुस्सा आता है. वो और वो बार बार वही चीज ट्राई करने की कोशिश करता है. इवन मुझे भी बहुत ऐसा ही है. मुझे भी वैसा ही, मैं भी वैसे ही फील करता हूँ. मैं भी बहुत जिद्दी हूँ. तो जो चीज नहीं होती तो बार बार उसमें पुश करना, बार बार वो क्यों नहीं हो रही. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जसप्रीत बुमराह का भी ऐसा ही नेचर है. तो अगर आप एक क्रिकेटर प्लेयर नहीं होते तो आप क्या बनते? Look, to be very honest, I was हार्ड क्वेश्चंस पूछो तो अभी इसलिए seriously I don't know, I have no clue, but maybe pilot because मैं पढ़ने में काफी अच्छा था स्टार्टिंग डेज में, और साइंस में मैं बहुत अच्छा था. तो मैंने जब मैं क्रिकेट नहीं खेला था तो मुझे लगता था कि शायद मैं पायलट बनूंगा. तो वो एक ड्रीम थी, शायद वो बहुत डिफिकल्ट थी. हाँ, आपको पेंटिंग का भी बहुत शौक है, ऐसा हमें अपने सोर्सेज से पता चला है. तो बिल्कुल पेंटिंग का भी बहुत शौक है, पर पेंटर बनना वो उतना पैसा नहीं मिल सकता ना. तो मुझे था कि शायद पेंटिंग एक्चुअली मेरी अच्छी है और बचपन से ही अच्छी है. तो अभी इस टाइम पे शायद लॉकडाउन के टाइम पे मैंने काफी सारी पेंटिंग बनाई है. तो इंडियन टीम में ऐसा कौन हंसता है जिसकी हंसी सुनकर आपको हंसी आती हो? शिखर धवन. अच्छा शिखर धवन बहुत फनी कैरेक्टर है टीम में, और हमेशा हमेशा एंजॉय कराते हैं दूसरों को, और उनके साथ आप हमेशा रहेंगे. अगर आप उनके माहौल में हैं तो आप आप उनके माहौल में रहेंगे तो आप हमेशा हंसते ही रहेंगे. तो मेरा ये मानना है. अच्छा तो वीकेंड्स पे पार्टी या दिन भर सोना? दिन भर सोना. आई डोंट लाइक पार्टीज एंड ऑल्सो. सो सोना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूरे पूरे 5 दिन वर्क करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तो आपको नींद भी तो चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सो आपका सबसे पहला अवार्ड कौन सा था? लाइक कौन सा था क्रिकेट में? सबसे पहला अवार्ड इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफिकल्ट वन. सर रैपिड फायर राउंड है. I don't know. I don't remember. अच्छा ठीक है पास पास. तो क्लीन शेव या बियर्ड? क्लीन शेव. सो आई एम श्योर कि हम सब बियर्ड प्रेफर करेंगे, लेकिन Why? बियर्ड इज गुड. बियर्ड इज गुड. Nowadays girls like beard. I don't know why. है अभी. तो पराठे विद Okay. पराठे विद दही? पराठे with घी या पराठे विद दही? पार्टी with दही. दही. ओके. Yes. माउंटेन या बीचेस? Mountain. ओके. ईडन गार्डन या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड? Eden Garden always. ओके ओके. सो आपका फाइनल स्टेटमेंट हमारे यंग क्रिकेटर्स के लिए कौन सा होगा? Final what? Sorry. फाइनल स्टेटमेंट हमारे लिए, हम यंग क्रिकेटर्स के लिए कौन सा? Okay. Final. I have a very small message for youngster. कि आप मेहनत करें, सही डायरेक्शन पे मेहनत करें, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने में बिलीव रखें. आपकी जो भी स्किल है उस पर आप उसको बैक करें, और हमेशा हर चीज़ को सही तरीके से सोचें, और अपने आप में खुद को टाइम दें बहुत ज़्यादा, और कोई चीज़ छोड़े नहीं. आई मीन कोई भी चीज़ आपको मिलती है या फिर कहीं भी चीज़ में आप कोई चीज़ में आप लगते हैं तो उसको जाने मत दें, अपने आसानी से जाने मत दें, क्योंकि बहुत बार होता है आप छोड़ देते हैं चीज़ें कि आपको लगता है कि शायद मेरे बस का नहीं है. तो आप हमेशा पकड़ के रखें, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेहनत मेहनत मेहनत.
हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, आई एम श्योर सक्सेस आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। अदिति, थैंक यू आपको अदिति, थोड़ा तो मजा आया होगा, हमको तो इंडीड बहुत मजा आया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अदिति। Thank you so much, Kuldeep ji. They say no pain without gain, no gains without pain, sorry. So that is the message you giving to our youngsters. हमारे साथ आज बहुत सारे यंग बच्चे और ऑडियंस जुड़े हैं, तो मैं कुछ सवाल ऑडियंस के जो उन्होंने पूछे हैं वो लेना चाहूंगी। अरिन बोस ने पूछा है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो प्लेयर्स को ध्यान में रखनी चाहिए मैच खेलने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको नींद चाहिए प्रॉपर, आपकी स्लीपिंग टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब भी आपका मैच है उससे पहले आपकी मील जो आप खाना खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ें जो चीज़ आपको मैच में ले जानी है आप उसको पैक पहले से कर लीजिए। और जो भी आपके छोटे-छोटे काम होते हैं वो शाम को ही आप ख़त्म कर लीजिए, जैसे घर पे बात करना या फिर किसी से भी बात करना, वो आप चीज़ें पहले कर लीजिए शाम को, जबकि 8 7-8 बजे के बाद आप फ्री हो जाएँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहें, अच्छे से आप नहाइए और अच्छे से रिलैक्स करिए, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे तो नेक्स्ट डे जब आपका गेम होगा तो उतना ही आप फिट रहेंगे और उतना ही आप में एनर्जी बनी रहेगी। राइट। अगला सवाल है तन्मय पात्रिकर से। तन्मयी, वो कहती हैं कि वो आपकी सबसे बड़ी फैन है और वो जानना चाहती हैं कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे रखते हैं? Thank you, Tanmay. And I guess पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा वैसा कुछ होता नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ आप जब इंडियन टीम के साथ जुड़ते हैं या फिर आपके जो भी काम होते हैं वो आप करते हैं। जब आप पर्सनल लाइफ के लिए जब आप रूम पे आते हैं तो आपको एक ही चीज़ दिखती है, सोना, अच्छे से नहाना, खाना और सो जाना। तो पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी से बात करेंगे, घर से बात करेंगे, कोई फ्रेंड होगा उससे बात करेंगे। मैनेज करना ईज़ी है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, कहीं आप कहीं बाहर भी घूमने गए तो आपको फैन्स अगर मिल जाते हैं तो भी उसको आपको हैंडल करना है, तो उसको पोलाइटली बहुत हैंडल करना है, क्योंकि बहुत से प्लेयर हैं मैंने देखे हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तो उसपे भी आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि आजकल हर चीज़ें आ गई हैं। तो आई एम श्योर कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है प्लेयर के लिए, पर मेरे हिसाब से आपको जितना काम रहेंगे तो उसमें उतना ही इफ़ेक्ट रहेगा। तो पर्सनल प्रोफेशनल में यही फ़र्क है। पर्सनल में आपको पूरा स्पेस मिलता है, आप आराम से रिलैक्स करते हैं। प्रोफेशनल में आप कहीं भी जा रहे हैं तो डिफ़िकल्ट है आपको मैनेज करना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेडिटेशन या कुछ करते हैं अपने आप को काम रखने के लिए? एक्चुअली मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मेडिटेशन मैं करता हूँ और शायद मैं अपने कोच के साथ करता हूँ। जब मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ तो ट्रेनिंग के बाद मैं हमेशा 5-10 मिनट मेडिटेट करता हूँ अपनी बॉडी को। तो शायद वो हेल्प करता है आपको, कहीं न कहीं आप रिलैक्स रहते हैं उससे। अगला सवाल अमेय नांदेड़कर का है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्रिकेट ने आपको क्या वैल्यूज सिखाई हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए? क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट ने मुझे ये सिखाया है कि आप अपने पे बिलीव रखें, क्योंकि जब मैं छोटा था तो बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते थे पर मैं कभी सुनता नहीं था। शायद सबसे बड़ा पॉज़िटिव साइन था मेरे लिए। दूसरी चीज़, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज़ अचीव करते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल आपको बैक करने वाला चाहिए, ना कि आपको टाँग खींचने वाला चाहिए, या ना कि आपकी बुरी चीज़ों में आपको डालने वाला हो। तो आपको वैसा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपके टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोई चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं या फिर कोई भी प्रोफ़ेशन है आपका, उस पे आप बहुत डिसिप्लिन चाहिए आपको टाइम से टाइम चाहिए हर चीज़ में। और चौथी चीज़, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोई भी हो। वो आपको बड़े जितने भी मैंने क्रिकेटर सचिन पाजी हैं, मैंने उनसे सीखा है, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिकेट खेला उन्होंने और इतने हम्बल हैं, तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है।
तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए और हमेशा जो आप और चौ 5वीं चीज़ ये है कि जब आप अच्छे स्टेबल पोज़ीशन में हो तो आप हमेशा नीडी पर्सन की हेल्प करें। वो बहुत ज़रूरी है। शायद आजकल के लोग आज हमारा टाइम भी बहुत ख़राब चल रहा है। ये कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत लोग फँसे हुए हैं। तो अगर आप कंफ़र्टेबल हैं, अगर आप लग रहा है कि आप मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर मदद कीजिए। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत ज़रूरी है ये हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना और मुझे लगता है हमारे बच्चे आपकी बात तो बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। और अगला सवाल हाँ जी। मैम एक और चीज़ है और एक और चीज़ है जो हम आजकल नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपका एज ग्रुप सेम है, तो आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपसे जो जूनियर होगा उसको आप डाँटते हैं, तो आपको हर इंसान से आपको सीख मिलती है। अगर आप छोटा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कहीं न कहीं आप किसी के छोटे होंगे, आपसे बड़ा होगा तो आपको अगर वो डाँटेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपको वैसे ही बिहेव करना है, जैसे आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कैसा कभी होगा तो आप कैसा फ़ील करेंगे। तो स्कूल लाइफ़ में ये बहुत ज़रूरी है और हमेशा आपको एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। अब हमेशा आपको अ, जो भी काम करना है एज़ अ ग्रुप काम करना है क्योंकि आप कभी भी इसीलिए हम सभी बोलते हैं कि आर्मी में जो ट्रेनिंग करता है, आर्मी के जो भी आर्मी पीपल की रिस्पेक्ट इतनी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहते हैं और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आज हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ क्यों ना हम बचपन से ही स्टार्ट करें क्योंकि अर्ली एज में अगर हमारी वो चीज़ें आ गई, तो कहीं न कहीं आप हमेशा अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो आप स्कूल डेज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है जब मैं स्कूल में था, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि एक-दूसरे को चिढ़ाना, ये करना, वो करना। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप इस अभी से ये चीज़ें करेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर ये चीज़ें आप करोगे, तो कहीं न कहीं आप बहुत चीज़ें चेंजेज़ आएँगी आपके लाइफ़ में। तो आप हमेशा इस चीज़ का याद रखिए। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अगला सवाल भरत से है, जो ये जानना चाहते हैं कि हु इज़ द बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर? मोहम्मद कैफ मैंने उनके अंडर में खेला है और स्टेट के लिए वो खेले। उनके अंडर में मैंने काफ़ी मैचेस खेले और आई बिलीव कि वो बेटर कैप्टन रहे हैं और मैं हमेशा उनको हाई रेट करता हूँ। ओके। और एक सवाल ये है कि क्या आपने कभी विराट कोहली का किसी मैच में या नेट्स में विकेट लिया है? बहुत बार मैंने आउट किया नेट्स पे और मैच में भी आउट किया है, मैंने आईपीएल में आउट किया उन्हें। तो तो ऑफ कोर्स आपको बहुत खुशी होती है जब आप बड़े प्लेयर को आउट करते हैं, तो आप सैटिस्फाई होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बॉलिंग से, तो आपको खुशी होती है उस चीज़ की। वंडरफुल। प्रणव चोपड़ा का क्वेश्चन है कि सबसे मुश्किल किस बैट्समैन को आउट करना है? सब लोग सबका अलग-अलग ओपिनियन है और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ को आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं इंडियन प्लेयरों की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनके साथ ही खेलता हूँ और अपोनेंट में स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में डिफरेंट बैट्समैन है। वनडे फॉर्मेट में मुझे ऐसा कोई लगता नहीं, एबी डिविलियर्स ऐसे प्लेयर हैं जो उनको वो थोड़ा अलग चेंजेस हैं, उनकी जो स्टाइल है बैटिंग करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो उनको आउट करना डिफिकल्ट लगता है। रिदम शुक्ला ने हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स भेजे हैं कि आपके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। तो इतने सारे आपके फैंस हैं। अ, कोई मजेदार किस्सा, कोई वाकया किसी फैन के साथ हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? लुक फैंस ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच जितने सारे फैंस हैं और उनके सपोर्ट की वजह से आप हमेशा अचीव करते जाते हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें। बहुत सारे किस्से हुए हैं और एक किस्सा मुझे याद है कि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि चलो शादी कर लेते हैं। तो मैंने कहा वाज़ लाइक
ये क्या मैसेज है यार। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, पर वो थोड़ा अलग था, तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, कैसे लोग मैसेज करते हैं। पर फैंस हैं और उनको ऐसा लगता है, अपने वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। हाँ जी, सो वो उनका प्यार है। आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल मैम। अलग अलग तरीके से वो हर कोई बिल्कुल उसका इजहार करते हैं। बिल्कुल मैम। हमारे दर्शक जो हैं आज, वो आपसे चंद शेर जरूर सुनना चाहेंगे, तो हमारे दर्शकों शेर के लिए हाँ जी, आपने तो मैम, इतने सारे शेर लिखे हैं। में मैं शेर और शायरी करता नहीं हूँ मैम। शिखर धवन बहुत अच्छी करते हैं, और काफी टाइम हो गया, पहले मैं करता था शायद, अभी याद भी नहीं है मुझे शेर कोई। तो आपका लिखा हुआ ही कुछ सुना दीजिए। मैम मैं लिखता ही नहीं हूँ मैम। आपको गलत किसी ने इन्फॉर्म किया है मैम, इन्फॉर्मेशन है। शेर शायरी में करता नहीं हूँ। मैं गाने का बहुत शौक है, मैं गाने वगैरह गाता हूँ। तो तो शेर शायरी मैंने लिखे, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, काफी टाइम हो गया मैम, मुझे अब तो याद भी नहीं है। हाँ जी, ओके, चलिए तो ये हम छोड़ देते हैं। थैंक यू मैम। किसी ने ये सवाल पूछा है कि आप कौन से इंग्लिश काउंटी के लिए खेलते हैं। एक्चुअली मैम आई गॉट ए ऑफर फ्रॉम काउंटी क्रिकेट एज वेल, बट क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी, तो मैं खेल नहीं पाया वहाँ पे। और ऑफ कोर्स फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर खेलेंगे वहाँ पे, पर अभी फ़िलहाल तो मैं भी किसी काउंटी के साथ नहीं हूँ। ओके, ओके, हाँ जी। और एक आई थिंक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं। अ, तो इसमें ये पूछा है कि कितने घंटे हमको रोज क्रिकेट खेलना चाहिए गुड क्रिकेटर बनने के लिए। मैम ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है मैम। घंटों के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है, जब तक आपको लगे कि आपकी एनर्जी है प्रैक्टिस करने की, या फिर आपको लगे कि आप कोई भी, जब स्टार्टिंग आप क्रिकेट की कैरियर की स्टार्ट करते हैं 12-13 साल में, तो आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आपको, क्योंकि आपको स्किल में कमांड चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आपकी स्किल आपकी इम्प्रूव है, आपकी स्किल अच्छी तरीके से, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है उस पे, स्किल पे काम करने की। इट्स लाइक मैम रिवीजन, जैसे आप क्लास में आप नए-नए जाते हो तो आप पढ़ाई करते हो, फिर जब क्लास में नए-नए जाते हो तो पढ़ाई करते हो आप, उसके बाद जब फर्स्ट टर्म खत्म होता है तो आप उस चीज़ को, आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे रिवीजन करना है। तो जस्ट लाइक दैट ओनली, अगर आपको पहले यही करना है, जब स्टार्ट करते हैं स्किल, तो आपको टाइम देना है 2-2 3-3 घंटे, कभी-कभी बहुत टाइम लगता है, बट एट द सेम टाइम जब आपकी स्किल हो जाती है तो आपको मैम 1 डेढ़ घंटा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं लगती है। फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई एम श्योर कि हमारे जो बच्चे हैं, ये जो सुन रहे हैं आज, ये जो आप टिप्स जो दे रहे हैं, उनसे उनको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। सो कुलदीप जी, आप हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं। और थैंक यू सो मच मैम। आपने आज इतना आपका कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी टिप्स और ये सजेशंस दिए हैं कि क्रिकेट अगर उनको खेलना है और उनको उसमें अपना करियर बनाना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आज सभी बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। हमारा आज का ये इंटरव्यू और ये वेबिनार का समय समाप्त होने वाला है। सो आखिरी के कुछ जैसे अदिति ने भी पूछा, मैं भी और पूछना चाह रही हूँ कि एक आखिरी पार्टिंग जो बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे। मैम अगर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब अर्ली अर्ली डेज में आप क्रिकेट खेलते हो तो पढ़ाई को मुझे हमेशा हाथ में लेके चलना है, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमें पढ़ने में मदद करेगी। तो बहुत से लोग होते हैं कि पढ़ाई छोड़ के एक चीज़ पे फोकस करते हैं, पर आपको हमेशा दोनों को किसी तरह से बैलेंस करना है कि दोनों चलती रहे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, क्रिकेट भी खेलो, तो उस चीज़ को आपको कैसे भी किसी तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऊपर बढ़ाएगी। हमेशा आप क्रिकेट क्रिकेट खेल जाएँगे, क्रिकेटर बन भी जाएँगे,
पर जब आपको कहीं आपसे बात करना हो, किसी से मिलना होगा, तो एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी तरह से आप किसी के सामने पेश कर सकते हैं अपने आप को। तो एजुकेशन को हमेशा आप प्रायोरिटी पे रखें और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि अगर एक चीज़ पे फोकस करेंगे, तो अगर एक चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो एटलीस्ट आपकी एजुकेशन रहेगी जो हमेशा आपको कहीं न कहीं कोई भी सिचुएशन हो, एजुकेशन हमेशा आपको सक्सेसफुल आदमी बनाती है। तो मेरा मैसेज यही है कि क्रिकेट के साथ-साथ पढ़ाई पे उतना ही ध्यान दें जितना क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हैं, और बहुत हम्बल इंसान बने और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छी तरह से मॉम-डैड की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से खाना खाएँ, अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छी प्रैक्टिस करें। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को अच्छा बनाती हैं। राइट, थैंक यू सो मच। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रिकेट भी खेलें और पढ़ाई भी करें। So बिल्कुल मैम। we have come to the end of this webinar today, and thank you so much for joining us, and for all the wonderful people who have joined us today from all across the country. A big thank you. Have a pleasant evening. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks.